Hello and welcome back to my channel. I am Nikhil Shukla, Executive Engineer in Water Resource Department of Government in Gujarat. So first of all, let me thank you for the response of the last video जो मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनने के बाद वीडियो बनाई थी और उस पर 20,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं. सो आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड. मतलब मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मतलब लोगों को इतना पसंद आएगा वो वीडियो. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दिस कि पीपल आर इंस्पायर्ड बाय इट. एंड 8-9 महीने हो गए तो पीपल हैव टोल्ड मी दैट कि वो वीडियो देखने के बाद दे हैव मतलब जॉइंड समथिंग एल्स. मतलब दे हैव डन देयर हार्ड वर्क आफ्टर दैट एंड देन दे हैव बीन सिलेक्टेड इन सम जॉब. ऑल्सो उसमें मैंने कहा था कि आई विल बी देयर टू हेल्प यू. और उसमें मैंने अपने टेलीग्राम चैनल वगैरह सब डाला था, तो उस वजह से बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया था. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट कि मतलब आई हैव रिप्लाइड मोस्ट ऑफ यू. I may have left. I may have not been able to respond to some of you guys. I'm so sorry for that, and I'm very मतलब humbled by you guys. Thank you so much for this. So जिसने भी मेरे ये वीडियोस देखे होंगे, जो भी मेरे इस चैनल पे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, they know that कि I am making this video since I am preparing. और before that also, मतलब this channel has more than 100 videos. So you must have seen my all the struggle phase and all. And now that I'm selected, so I'm very happy that I get to inspire you. Also that I have multiple times told you that I lacked the guidance. So this is one of the reason that I want to give it back to the this YouTube Telegram and all, because these are the things which helped me a lot in my preparation journey. So for that, I have a great announcement for you. But before that, quick update what I've been doing since last 8 to 9 months. So first thing is this ki I told you that I've been selected in as an executive engineer in Government of Gujarat. So there is a rigorous training of 14 months. So we had we are more than halfway through of it. So we have done field trainings. We have done to different departments, different circles, different districts of the Gujarat. We have seen many dams, many of this what we say Narmada Canal. And I am humbled by this Water Resource Department of Gujarat, because it has the biggest largest canal linkages in the world. So this is a very great journey to be part of. Next thing is this: in 8 to 9 months I bought a home. We used to live in a 1 BHK rented apartment. You might have seen my previous video. So that room was very small for all of us guys, and we were a very I come from a very humble background. So it was always a dream to buy a house. And with all the struggles and hard work, and by God's grace, I'm able to buy this home. So I am very happy to share you with this, because when we prepare, we don't know what we are gonna achieve of this, or we are just wasting time, money, and efforts of our parents and us. And this is one of the notion that what we will be able to do. So if I can set an example for you guys, this will be a great achievement for me. When I was preparing, Sagar Dodeja sort of made easy. He made a video of his home. It was a big home. I can't compare with him. But for us guys, this was a very inspiring for me, that people like us can make this in our lifetime. So this is one of the parallels of me of doing this. I was very happy. I know this is not incomparable with that house, but this is for me, this is a great achievement. I'm very happy to share it with you. And more than that, I don't want to I'm not showing off. It is a 3 BHK home. I don't want to show you off, but I just want to tell all the fellow aspirants who are preparing that there is a light out of the tunnel, and darkness is just for 6 months, one year or 2 years, and then you will see light. I have seen people who are preparing for 4 to 5 years continuously, rigorously, and they are selected, and they are having the best time of life. So keep on grinding, keep on doing your hard work, and results will fall into your lap. Next thing is this key. I want to show you my house, so I will add some clips after this.
hope you have seen video, you might have liked it or not. So thank you for this watching this. And next thing is this key, I wanted to announce something that I when I was preparing, I was part of many groups, the groups by the selected candidates who were able to like help me out in my preparation. I wanted to make a small group. I don't want a very large group of 10 to 20,000 people. I just want, if there are 40-50 people, I am happy with it. But if there are more, I am more than happy with. I don't care. So this groups will help you in peer-to-peer instruction, interaction also, and this will help me out to give the generic content, whatever I wanted to share, because the problems are more generic only. Because people think that they are very unique, their problems are very unique, but it is not like that. I also used to think that my problems are very unique, but it is not like that. So I just wanted to share this key. I am making a group. For that I have used a pen and tablet, and I will tell you more about it. So you watch that thing, and then we will come back and talk about it. So आपने इंट्रो पार्ट देखा होगा जिसमें मैंने एक टेलीग्राम चैनल की बात की थी। तो मैंने सोचा कि एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा जिसके अंदर हम गाइडेंस की बात कर सकेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो पाएगी, आपको ये बता पाएंगे कि यू आर नॉट अलोन। सब लोग यही इसी तरह से तैयारी कर रहे हैं, सब लोग यही तैयारी कर रहे हैं, एवरीवन बार 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 एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं। एंड यू आर नॉट यूनिक ऑल्सो, कि ऐसा नहीं कि मेरी प्रॉब्लम्स सबसे अलग प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सबकी प्रॉब्लम्स बहुत अलग हैं और सब इसी में से कर रहे हैं। तो जब इस ग्रुप में आप रहेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से बाकी लोग टैकल कर रहे हैं, या फिर मैं आपको गाइड करूँगा कि किस तरह से करना है। एंड देन वी विल टॉक अबाउट पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑल्सो। यू कैन प्राइवेटली मैसेज मी इफ़ यू वांट। अगर आपको चाहिए कि कोई पीयर आपकी हेल्प कर सके, कोई और दिक्कतें हों, तो आप ग्रुप में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। एंड देयर इज़ एवरीवन टू हेल्प यू। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स थे जिन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की थी। सो दिस इज़ माई टाइम टू गिव इट बैक। सो हम इसमें गाइडेंस की बात करेंगे। मैं प्रॉपरली आपको बताऊंगा क्या कैसे करना है। मैं अभी आपको बताऊंगा अभी कि मैंने कौन सी एग्जाम्स निकाले, जिससे आपको पता चले कि आई कैन कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम्स, एवरी एक्सपेक्ट जो भी एक सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम में हो सकती है। आई हैव क्रैक्ड इट ऑल। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। कि हमें लगता है कि हम बहुत छोटी कॉलेज से हैं, हमें लगता है कि हमें कुछ आता नहीं है। कुछ और लोग हैं जिनको ज़्यादा आता होगा, जो 4-5 अटैम्प्ट दे चुके हैं, वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, एंड वी विल डू दैट इन दिस ग्रुप। और जैसा कि मैंने बताया कि आप अकेले नहीं हैं, आप यूनिक नहीं हैं, सबकी ये प्रॉब्लम्स हैं, एंड देन वी विल डील विथ इट। सो मैंने नाम सोचा है ब्रिज द गैप विथ निखिल। सो कुछ तो सिविल इंजीनियरिंग का एस्पेक्ट रखना था। मेन ये था कि ब्रिज द गैप। हम सब ने काफ़ी अच्छे से तैयारी की है, हमने बहुत बार पढ़ा है, पर दिक्कत ये आती है कि हम उस ये जो क्लिफ है कि जहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं, और ये जो क्लिफ है कि जहाँ पे हमारा सिलेक्शन होगा, उसमें एक लास्ट छलांग की कमी रह जाती है। सो यहाँ पे हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ब्रिज करेगा, आपको गाइड करेगा कि कौन सी एग्जाम क्या क्या करना है। आई विल ट्राई टू डू इट ऑल। आई डोंट नो, दिस इज़ माई फर्स्ट experience in making this telegram channel and all, but my experience is not new in guiding my fellow aspirants, so I am very eager to do this. So please join this channel. और आपके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे को टेलीग्राम पे, मतलब इवन नाउ, मतलब लास्ट वीडियो जो मैंने 1 साल पहले डाला होगा, बट इवन 4 to 5 मैसेजेस डेली आप एटलीस्ट आते हैं मुझे, जिसमें मैं क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो मैं कवर करता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल बनाने का जो रैशनल था वो यही था कि इफ़ आई कैन गिव जेनरिक एडवाइसेस जिससे कि आपको कम दिक्कतें हों, तो जो पर्सनल होंगी वो कम होंगी, कि जेनरिक आपको पता चला कि सबको ये दिक्कतें हैं। तो दिस इज़ माई रैशनल बिहाइंड दिस, एंड एज आई टोल्ड यू दिस इज़ फॉर ऑल सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट, any aspirant who is preparing for civil engineering, be it JE, SSC JE, be it GATE, be it engineering services, any aspirant who is preparing for this, I can cover it all, because I have given all the exams, I have been selected in all the exams, so this will help you. So मैं खुद के बारे में बता दूं कि दिस इज़ मी निखिल शुक्ला। एकेडमिक्स में मैंने बीटेक किया है, 2021 में पास आउट हूँ LDRP गांधीनगर से। यहाँ पे मैंने सिविल इंजीनियरिंग में किया है, बट जो ये येलो कलर से ब्रैकेट में लिखी हुई, ये मैंने बताया कि मेरी कॉम्पिटेंसी किस किस में है। तो मेरे लिंक्डइन पे भी अगर आप देखोगे तो मैंने जो बीटेक में जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, G+3 बिल्डिंग डिज़ाइन से लेकर क्या स्टील इंडस्ट्रियल बिल्डिंग डिज़ाइन, फिर ब्रिज के ऊपर कुछ काम किया था मैंने,
ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के ऊपर काफ़ी काम किया था मैंने इसके अंदर। तो यू विल कम टू नो दैट कि मैंने बीटेक में स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। नेक्स्ट इज़ एमटेक। एमटेक मैंने आईआईटी दिल्ली से किया, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में। तो ये नेचुरल सा कि मैंने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इसके अंदर और उसके ऊपर से मैंने ब्लॉकचेन वगैरह भी काफ़ी, मेरा जो आईओटी और ब्लॉकचेन वाला मेरा वो था प्रोजेक्ट, तो मैंने ये भी कवर किया एस्पेक्ट। ये येलो वाला जो पोर्शन है वो सिर्फ इसके लिए बताने के लिए कि मुझे मेरी नॉलेज सिर्फ एक डोमेन में नहीं है। मतलब मैंने काफ़ी डीपली स्टडी किया, स्ट्रक्चर भी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी, वाटर रिसोर्सेज भी, एनवायरनमेंट भी, एंड दिस इज़ बियॉन्ड गोइंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस, सो आई कैन हेल्प यू इन दैट ऑल्सो। सो दिस इज़ माई एमटेक। एमटेक मैंने 2024 में पास आउट किया। एक साल का मेरा एक साल मैंने ब्रेक लिया था जिसमें मैंने गेट और ईएससी की तैयारी की थी। इसमें फिर अभी जो मेरी करंट जॉब है वो मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में, और मैं अभी ट्रेनिंग पे हूँ। अभी ट्रेनिंग चलेगी शायद नवंबर तक, तो उसके बाद मुझे चार्ज दिया जाएगा। तो अभी लास्ट वन ईयर से मैं ट्रेनिंग पे हूँ यहाँ पर। इस एग्ज़ाम में मेरा AIR 6 आया था। सो यू कैन सी मीन्स में इसके जो थे वो मेरे मैक्सिमम मार्क्स थे। मीन्स में मैक्सिमम जो भी हो सकता है, आई हैव स्कोर्ड इट ऑल। फिर उसके पहले मैं साइंटिस्ट भी था, 9 to 10 मंथ आई हैव सर्व्ड हियर इन दिल्ली। तो वहाँ पे मैंने एनवायरनमेंट था CPCB में, तो एनवायरनमेंट एस्पेक्ट मैंने काफ़ी कवर किया था। उसके पहले मैं 1 महीने तक DDA में जेई था, उसमें भी AIR 13 आई थी, साइंटिस्ट बी में AIR 9 आई थी। सो आई हैव बिन कंसिस्टेंटली हियर। फिर 2023 का जो ईयर था उसमें 205 रैंक आई है, 2022 में 552 आई है, एनवायरनमेंट में 36 आई है 2022 में। SSC JEE में भी सिलेक्ट हुआ हूँ, राइट्स में भी सिलेक्ट हुआ हूँ। मैंने 2 मेंस लिखे हैं, क्या बोलते हैं, UPSC ESC के 2 अटेम्प्ट में, दोनों में मैंने मेंस लिखा है और एक बार इंटरव्यू दिया है। सो ऐसा नहीं है कि मैं इसको क्रैक नहीं कर सकता था, पर क्योंकि मेरी यहाँ पे जॉब हो गई थी, मेरे स्टेट में जॉब हो गई थी, तो आई लेफ्ट द प्रिपरेशन एंड आई लेफ्ट इट फॉर समथिंग एल्स, लाइक आई एम डूइंग समथिंग एल्स। सो आई वांटेड कि अब इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम्स का हो गया था, आई वांटेड टू शिफ्ट टू समथिंग एल्स, सो आई एम देयर। सो ये जो पोर्शन था अबाउट मी, यू नो इट ऑल इफ यू हैव सीन माई प्रीवियस वीडियो। आई जस्ट डिड इट टू शो यू दैट आई एम कॉम्पिटेंट इनफ टू गाइड यू। मतलब हमको लगता है कि जो बोल रहा है वो सही भी बोल रहा है कि नहीं, इसने कुछ खुद किया भी है कि नहीं। सो आई हैव डन इट ऑल। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द एग्जाम्स। आई हैव कवर्ड, आई डोंट रिमेंबर दिस कि मैंने और भी किए थे, क्योंकि गेट में जब रैंक आ जाती है तो आप इंटरव्यू देते हैं बहुत सारे, एंड आपका सिलेक्शन डायरेक्टली होता रहता है। और जब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के नॉन रिकमेंडेड लिस्ट में भी होते हो तो 1-2 जॉब वहाँ पे भी लगती है, जैसे कि DPCC में इंटरव्यू देने जाना था तो मैं उसमें गया नहीं था। ऐसी बहुत सारे इंटरव्यू भी मैंने छोड़ दिए हैं, पर सिलेक्ट होकर भी छोड़ा है मैं, आई डोंट रिमेंबर नाउ। फिर तो आई जस्ट वांटेड टू नो दैट आई एम कॉम्पिटेंट इनफ टू गाइड यू। एंड ये भी है कि ये एक ही बार में नहीं हो गया कि इस साल हमने प्रिपेयर किया कि नहीं किया। सब बच्चे एक साल प्रिपेयर करके बहुत थक जाते हैं। सो दिस इज़ 2022 to 2024। 2020 में मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, 2021 में मैं पास आउट हुआ था। तब मैंने गेट दी थी पहली बार। मैंने सॉरी यहाँ पे मैं बताना भूल गया, यहाँ पे गेट मैंने जो पहली बार दी थी उसमें मेरी 3500 रैंक आई थी। सेकेंड बार में 552 एंड थर्ड बार में 205। सो दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, यू हैव टू गो इन इट सो दैट यू कैन रिप द बेनिफिट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। और एक और बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सिविल इंजीनियरिंग है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू डू नाउ डेज, लाइक क्योंकि एक तो पहले जॉब्स काफ़ी हैं गवर्नमेंट में, स्टार्टिंग फ्रॉम JEE यू कैन बिकम EE एज आई एम, एंड ये इतना बड़ा वाइड एस्पेक्ट है, इसमें इतनी सारी जॉब है और सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो आप सारी एग्जाम्स कवर कर सकते हैं। आपके पास इतने सारे हैं, आप हर स्टेट में जाके दे सकते हैं, स्टेट स्पेसिफिक नहीं है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम, एंड यू कैन टेक फ्रॉम मी इन राइटिंग दैट अगर आपने प्रिपेयर किया है 1-2 साल एकदम डिलीजेंटली, तो यू विल बी सिलेक्टेड, देर इज़ नो अदर वे। लाइक अगर आप करते ही रहेंगे प्रिपेयर तो यू विल बी सिलेक्ट। आई हैव नॉट सीन, मतलब मेरे जितने भी दोस्त हैं जो भी प्रिपेयर कर रहे थे, किन्हीं का 4 साल में हुआ, किन्हीं का 5 साल में हुआ। देर आर पीपल हु आर सिलेक्टेड इन 4 to 5 years, देर आर पीपल हु सिलेक्टेड इन जस्ट 6 months। वन ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट EAC इन मतलब 6 months बिफोर द EAC प्रीलिम्स एंड देन ही गॉट सिलेक्टेड। सो 4 से 5 साल वाले भी हैं, ये वाले भी हैं, बट वन थिंग इज दिस कि सब सिलेक्ट होते हैं। मेरे IIT में हम लोग 5-6 लोग का ग्रुप था, सबके सब सिलेक्ट हो गए हैं। कुछ NHI में हैं, कुछ JEE हैं, कुछ
स्टेट क्या बोलते हैं, कौन सी जॉब होती है रेलवेज, ये मेट्रो वाली, मेट्रो में मैं डबल ई हूँ यहाँ पर. सो वी ऑल आर गॉट सिलेक्टेड. कुछ SSC में, CPWD में. सो वी ऑल गॉट सिलेक्टेड एंड यू विल ऑल्सो गेट सिलेक्टेड. सो डोंट वरी अबाउट दिस. इट इज़ जस्ट द मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस एंड द पेशेंस. सो ये दो चीज़ें आप मेंटेन कीजिए एंड दिस इज़ एंड द जॉब विल कम टू यू. सो ये मैंने नाम रखा है ब्रिज द गैप विथ निखिल. मुझे टेलीग्राम के चैनल का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई विल विद टाइम आई विल लर्न ऑल्सो. सो ये QR कोड है जो ब्रिज द गैप विथ निखिल जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. साथ में मैंने जो डिस्क्रिप्शन पार्ट है उसके अंदर भी इसकी लिंक डाल दिया, सो यू कैन डायरेक्टली क्लिक एंड ज्वाइन द लिंक. दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, सो आई ऑल्सो डोंट नो हाउ टू मैनेज द टेलीग्राम चैनल, बट आई विल लर्न ओवर द टाइम. एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रुप एंड होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो. होप ये आपको आपकी जर्नी में काफ़ी हेल्प करे. So let's I hope you have liked the initiative. I don't have any. In the video I have also told that I don't have any experience in managing a Telegram channel, but I wanted to reach out to people because in personal chats we tend to miss some of the chats. So it is very important for me to cater all the doubts and thing. And more importantly, that when peer-to-peer interaction is there, then the people think that they are in the same boat and they can sail through it. So it is one of the reasons, and we can cater to a great large public. So I hope you will join this group, and you can tell me also what else I can do, because I told you that I don't have experience in that. And after this, you can join me on my Instagram, on my LinkedIn also. So this is all about this video. And this is all about the academics and the guidance part. And next thing is this ki you might have seen my previous videos that I always wanted to be a vlogger. So when I was preparing, I thought that when I will be selected, I will make videos. When I will go to IIT, I will make videos. So I have made some of the videos in IIT. I have made some of the videos while I was preparing study vlogs and all. But this is an art form, and I am artistic by my heart. I like poetry. I like this vlogging and editing and all things. So I get to carry away with the feeling in this case, I will think about it whole day. So I used to contain myself, it is not the right time to do. But I think I should not wait for the right time to now. So I will start to make some vlogs of my training, especially when we go out on field, so that you can see what is the life of civil engineers in the field. What is the real job? What is the reality? Because all the things we have while we are preparing everything, everything seems very beautiful in our mind, but the reality is very different. Sometimes reality is very beautiful also, we can't say this, but I will say this ki when you will see my videos, then you will come to know what is the reality of it. And hope you will like it. I will come back, I will try to make videos per week, one video per week. And also I would like to make videos for your preparation journey, because this will be very helpful. So we will talk and we will make videos over it. You can send me comments, you can send me personal messages ki what are the problems you guys are facing, so I can make videos, and I will make videos on those topics also which I feel that I felt at that time and nobody was there to cater it. So this is me, this is what I want to do, and hope I in this journey of helping you and all, this will be able to help you to make realize your dream. So thank you for watching this video. Please do comment what else I can do. Please do say how your preparation are going, and I am there for you like a elder brother. I missed I didn't have an elder brother. I don't have a person who used to help me out, but I want to be that person for you guys. So thank you for watching this video. Please comment and please join this channel. Thank you. Bye.